شرح سود میں مزید 2% کمی، شرح سود کی سطح 15 سے کم ہو کر 13% پر آ گئی۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز اسٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس میں 2315 پوائنٹس کا اضافہ 1,16,629 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اہم جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں ملک کی مجموعی سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ہر پاکستانی شہری کی ڈیجیٹل شناخت، قانون سازی کا بل قومی اسمبلی میں پیش۔ مقصد معیشت کو ڈیجیٹلائز کرنا اور ای گورننس کو فروغ دینا ہے۔ بل کے تحت شناخت میں فرد کی صحت، اثاثوں اور دیگر سماجی اشاریوں کے بارے میں ڈیٹا شامل ہوگا۔ ڈیجیٹلائزیشن کی کوشش سے سرکاری محکموں کی کارکردگی میں بہتری لائے گی۔ شناختی کارڈ، لینڈ ریکارڈ، پیدائشی سرٹیفکیٹ اور صحت کے ریکارڈ کا انتظام کرنے والے محکموں تک رسائی کو بہتر بنانا ہے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ کی سپیڈ اس طرح دستیاب نہیں جس طرح ہونی چاہیے۔ وزیر مملکت شہزاد فاطمہ کہتی ہیں پاکستان ڈیجیٹائزیشن کی طرف گامزد ہے۔ حکومت ڈیجیٹائزیشن کے لیے قانون سازی پر کام کر رہی ہے۔ معیشت بہتر، مسائل میں کمی آ رہی ہے۔ نیشنل براڈ بینڈ نیٹ ورک فورم کی تقریب سے خطاب۔ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے نام پر ہمیں لال بتی کے پیچھے لگا دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے لاہور میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 90 کی دہائی میں ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ کرنے والی صنعتوں کو بند کرنے سے لے کر دیگر عوامل پر بات ہوئی، لیکن کام نہیں کیا گیا۔ آئینی اعتبار سے بھی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کلائمیٹ فائنانس کی طرف جانا ہوگا۔ 26ویں آئینی ترمیم بھی کلائمیٹ فائنانس جیسا بڑا ایشو ہے۔ عدالتیں حکومت اور اداروں کو ہدایات جاری کرتی رہتی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سابق نیوی افسران کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل سے سزائے موت کے فیصلے پر عمل درآمد روکنے کا حکم امتناع ختم۔ ڈاکیات حملہ کیس میں سزائے موت پانے والے نیوی کے سابق 5 افسران کی دستاویزات کے حصول کی درخواست نمٹا دی۔ جسٹس بابر ستار نے پٹیشنرز کے وکلا کے بیان کے بعد درخواست ہٹانے کا فیصلہ سنایا۔ نیوی کے 5 اہلکاروں کو کورٹ مارشل کے ذریعے سزائے موت سنائی گئی تھی، جس پر ہائی کورٹ نے عمل درآمد روک رکھا تھا۔ سانحہ 9 مئی کو جی ایچ کیو حملہ کیس میں شیری مزاری سمیت 9 ملزمان پر فرد جرم عائد۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی عدالت میں پیش۔ پروسیکیوشن کی غیر حاضر ملزمان کی ضمانت منسوخ کرنے کی استدعا۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں سماعت 19 دسمبر تک ملتوی۔ شاہ محمود قریشی کی 265 کی دائر درخواست آئندہ سماعت کے لیے مقرر۔ دی چوک احتجاج پر 3 تھانوں میں گرفتار 188 ملزمان۔ اسلام آباد کی ATC میں پیش، 61 ملزمان ڈسچارج۔ سہالہ پولیس نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد 31، تھانہ اپارہ پولیس نے 94 اور تھانہ ترنول پولیس نے 63 ملزمان کو عدالت میں پیش کیا۔ 96 ملزمان 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ کمرہ عدالت میں ڈسچارج ملزمان کی ہتھ کڑی کھولی جائے اور دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے، عدالتی حکم۔ مذاکرات ہی تمام مسائل کا حل، مثبت سوچ کی ضرورت ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی سے بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ثقافت تہذیب ہماری پہچان ہے۔ انسانی ثقافت اور ورثے کی تاریخ صدیوں پرانی۔ پاکستان سیاحت کے حوالے سے محفوظ ملک ہے۔ امید ہے جیسے ان کی کوششوں سے وزیر اعظم اور بلاول کی ملاقات ہوئی، مولانا کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ سینیٹر فیصل بابتا نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ MKN اباب کی نمائندگی اور تحریک انصاف سے بات چیت سمیت جمہوری معاملات کو جمہوری طریقے سے ہی سر انجام دیا جائے، اور انہیں امید ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا وہ جلد دیکھیں گے۔ حلیف حریف اور حریف حلیف میں تبدیل۔ MKN کی حکومت سے دوری کے بعد اپوزیشن سے قربتیں۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان اور MKN کے وفد کی ملاقات ہے۔ ملاقات آج اسلام آباد میں مولانا کی رہائش گاہ پر ہوگی۔ ملاقات میں مدارس کے مسئلے اور ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔
पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में फिर गर्मा गर्मी। गवर्नर की तब्दीली पर लफ्जी वार जारी। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं जो गवर्नर की तब्दीली का ख्वाहिशमंद है वो ये हसरत दिल में लिए दुनिया से चला जाएगा, लेकिन गवर्नर नहीं जाएंगे। जाली डिग्रियों और डोमिसाइल के खिलाफ 8 साल कबल सिंध असम्बली में आवाज बुलंद की। 55,000 जाली डोमिसाइल बनाए गए। मैंने जब से चीफ मिनिस्टर बना हूँ 4 या 5 गवर्नर 4 मेरे ख्याल आए हैं। मैं भी अखबारों में सुन रहा हूँ, अदरवाइज मुझे नहीं पता कुछ इस बात का। सूबे के मफादात हमें अजीज, गवर्नर की तब्दीली का मुझे नहीं पता। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि उनके रहते हुए 4 से 5 गवर्नर्स आ चुके हैं। एक शख्स की वजह से पूरे सूबे को दाव पर नहीं लगा सकते। निगरां हुकूमत के बायस हमेशा पोलियो केसेस में इजाफा होता है। जिना अस्पताल का मसला अदालती फैसले की वजह से गंभीर हो गया। वज़ीर आला पंजाब का दौरे चीन मुकम्मल। मरियम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की दावत पर चीन का 8 रोज़ा दौरा किया। गोबी पार्टनर्स का पंजाब में 13 अरब रुपए से जायद के सरमायाकारी फंड के क़याम का ऐलान। गवर्नर पंजाब माफिया के सामने बेबस। अटक में यूनिवर्सिटी का कैंपस ताहाल नहीं बन सका। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि जब से गवर्नर बना हूं कैंपस बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मगर माफिया बहुत ताकतवर, करप्ट माफिया की वजह से कौम का पैसा जाया हो रहा है। बहैसियत गवर्नर अवाम के टैक्स से पैसा जाया करने वालों को नहीं छोड़ूंगा। कराची वालों को तरक्याती मंसूबे मजीद महंगे पड़ गए। सालों से जारी बीआरटी मंसूबा ताहाल मुकम्मल न हो सका। शहरियों के लिए मसाइल में इजाफा, कहीं बदतरीन ट्रैफिक जैम तो कहीं सड़कें टूट फूट का शिकार। पानी की मेन लाइनें भी मुतासिर। मुतादिद इलाकों को पानी की फराहमी मुअत्तल। यूनिवर्सिटी रोड पर फटने वाली 84 इंच कतर की मेन लाइन का मरम्मती काम जारी है। तेज रफ्तार गाड़ियों ने मजीद 3 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। कराची में बल्दिया मवाज घोट के करीब वाटर टैंकर ने राहगीर को कुचल दिया। मीरपुर माथेलो में नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक हादसा, मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जहां बहाक। पुलिस ने लाशें कानूनी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले कर दी। लवाहिकीन गम से निढाल, घर में कोहराम मच गया। मुल्तान में चोर ने ड्राई फ्रूट की दुकान लूट ली। एम ए जुना रोड पर चोर ने दिल खोलकर लाखों के मेवे लूट लिए। वारदात की सीसीटीवी वायरल। 16 दिसंबर माजी का एक और भयानक दिन। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 10 बरस मुकम्मल। दहशतगर्दों के लगाए जख्म आज भी ताज़ा। शोहदा के लवाहिकीन गम से निढाल। मुल्क की तारीख का वो लम्हा जब मासूम तालिब इल्मों का बदतरीन कत्लेआम हुआ। 150 बच्चे और असातिज़ा शहीद कर दिए गए। शोहदा से इजहार यकजहती। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आम तातील, तालीमी इदारे बंद। 16 दिसंबर 2014 अफसोसनाक दिन। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं दहशतगर्दों ने कौम के मुस्तकबिल पर हमला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हम भूलेंगे ना ही माफ़ करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का आसान है, APS के शोहदा को खिराज अक़ीदत। मोहसिन नकवी का कहना था कि दिन हमारे अज़्म का निशान बन चुका। मरियम नवाज ने कहा कि सानिया इंसानियत, तालीम और पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर हमला था। सानिहा APS कौम के लिए लम्हा फिक्रिया। दहशतगर्दी से निमटने के लिए वाज़ेह पॉलिसी और मुतफ़िका लाहे अमल नेशनल एक्शन प्लान तश्कील दिया गया। आज भी मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन जारी। हज़ारों दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। बड़ी तादाद में जवानों ने भी अपनी जानों का नजराना पेश किया। माजी का एक और बदतरीन लम्हा। मशरकी पाकिस्तान में खून की होली। सकूते ढाका को आज 53 बरस बीत गए। मुक्ति बाहिनी और भारतीय फौज का गठजोड़। दुश्मनों की साजिशों से पाकिस्तान दौलख्त हुआ। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान के दोस्त भी मदद को न आए। कर्क के इलाके बांडा दाऊद शाह में इंसदाद पोलियो टीम पर दहशतगर्दों का हमला। गोली लगने से एक एहलकार मौके पर शहीद। पोलियो रजाकार जख्मी हो गया। बनू में भी एंटी पोलियो टीम पर हमला। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दी का नोटिस ले लिया। जिला कुरु में शाहराहों की बंदिश। पारा चनार में अशाए खुरनोश खत्म। तेल और अद्वियात की शदीद किल्लत, तमाम परेशानी का शिकार। पाक अफगान खरलाची बॉर्डर भी हर किस्म की तिजारत के लिए बदस्तूर बंद। शदीद सर्दी में खुश्क लकड़ी भी नापैद। लाखों अफराद इलाके में महसूस।
ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। PCB की भारत के मैचेस श्रीलंका में कराने की तजवीज़। पाक भारत टाकरे के लिए दुबई फेवरेट करार। पार्टनरशिप या फ्यूजन फार्मूले के तहत 2027 तक ICC इवेंट्स में पाक भारत टाकरे न्यूट्रल मकाम पर होंगे। शेड्यूल का आज हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुस्तफी रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी के शिकवे, कहते हैं मेरा काम सिर्फ खिलाड़ियों को कैच की प्रैक्टिस कराना रह गया था। टीम सिलेक्शन के हवाले से कोई बात नहीं की जाती थी। हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नेल्सन को ओहदे से हटाने से कबल उनसे कोई मशवरा नहीं किया गया। हत्ता कि बाबर आजम को ड्रॉप करने का फैसला भी नई सिलेक्शन कमेटी का था। सर्द मौसम ने मुल्क भर को अपनी लपेट में ले लिया। बालाई इलाकों और पहाड़ों पर बर्फबारी। बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। इस्लामाबाद का मौसम खुश्क सर्दी की लपेट में है। रात और सुबह के औकात में ठंड की लहर में इजाफा। लाहौर में आलूदगी फिर बढ़ने लगी। मुज़र सेहत मयार के साथ पहले नंबर पर मौजूद। स्मोक की सतह 240 रिकॉर्ड। सर्द मौसम में सेहत की हिफाजत जरूरी। यखबस्ता हवाओं से बचने के लिए सादिकाबाद के शहरियों ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया। गर्म कोट जैकेटों की खरीदारी शुरू। महंगे दाम सुन के कई खाली हाथ लौट गए। अटक में निफ सदी से घरों में गर्म चादरों और कपड़ों की तैयारी। जद्दी पुश्ती काम में लेडीज मर्दाना सूट दुपट्टा खेस और सर्दियों की गर्म चादर शामिल। मैदान करबला में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत 72 शहदा ने खुदा की वहदानियत बचाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की मुक़द्दरात, इस्मत और तहारत भी कुर्बानी देने में किसी से पीछे नहीं थीं। बीबी उम्मुल बनीन अलैहिस्सलाम भी उनमें से एक थीं। वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ौजा और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की वालिदा थीं। बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा को उनकी कुर्बानी, वफादारी और ईसार के लिए तारीख में खास मकाम हासिल है। सहूनी रियासत गजा को मिटाने के दर पे। इसराइली फ़िज़ाइया की नसीरात कैंप पर बमबारी। फ़लस्तीनी सहाफ़ी समेत 6 शहीद। बैतुल्लाया, बैत हनून और जबालिया कैंप और रफ़ा पर हमले। 13 अफराद जान से हाथ धो बैठे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। शाम में बागी अफवाज इसराइली फौज के आगे बेबस। इलाकों पर कब्जा रुका, न ही शाम में हमले रुके। शाम की दिफाई और मिलिट्री तंसीबात की तबाही भी जारी। गुलान की पहाड़ियों में इसराइली आबादी दुगनी, मजीद आबादकारी का सिलसिला भी जारी। इसराइल ने शाम पर 10 बरस के दौरान का सबसे बड़ा हमला किया है। आयरलैंड ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। इसराइली इंतजामिया को आग लग गई। आयरलैंड में सफारत खाना बंद करने का ऐलान। सहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू का नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से राबता। कहा शाम के साथ तनाज़ी में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। शाम में इसराइली कार्रवाइयों का मकसद मुमकिन खतरात को नाकाम बनाना है। आलमी शोहरत याफ्ता तबला नवाज और मौसीकार उस्ताद जाकिर हुसैन अमेरिका में इंतकाल कर गए। 73 साला मौसीकार उस्ताद अल्लाह रखा के साथज़ादे थे। भारत ने जाकिर हुसैन को पद्मा श्री और पद्मा भूषण अवार्ड से नवाजा। उन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला, जो रक्स, ड्रामा और मौसीकी की भारतीय कौमी अकेडमी है। जाकिर हुसैन को अमेरिका के नेशनल अवार्ड भी मिले। फ्रांस में बदतरीन समंदरी तूफान ने तबाही मचा दी। 200 नॉटिकल माइल की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं ने दरख्त उखाड़ दिए। इमारतें और घर मुनहदम। फ्रांसीसी हुकाम के मुताबिक तूफान से बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का अंदेशा है। तारीख में पहली बार बिटकॉइन की कीमत $6,000 से जायद, यानी पाकिस्तानी रूपों में एक बिटकॉइन 2 करोड़ 89 लाख रुपए से जायद है। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप क्रिप्टो करेंसियों पर पाबंदियों को नरम करने के हामी हैं। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोर से जारी। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी घर सज गए। हजारों जगमगाती लाइटें और क्रिसमस थीम वाले डिस्प्ले सजा दिए गए। ग्रिंच के खिलौने भी खुशियां दुबाला कर रहे हैं। कोसोवो में जरूरतमंदों में फंड्स की तकसीम के लिए सेंटा क्लॉस मैराथन का इनेकाद। लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चीन में अनोखा कारनामा, दरख्तों को स्वेटर पहना दिए। रंग बिरंगे ऊनी मलबूसात में मलबूस दरख्तों को देखने शहरी उमड़ आए। दरख्तों के साथ तस्वीर बनाने में मसरूफ।